this is a very small group, so this will allow me or everyone who is a participant the opportunity that there can be a one-on-one interaction in the कि अगर किसी को individually कोई बड़ा particular सवाल है तो that can be addressed in this. I hope everyone, because आप सबके mics muted हैं, I would like each one of you to please identify that you can hear me. आपको मेरी आवाज loud and clear आ रही है. We have Fayaz, Fasiullah, Hasib, and Tala. Yes, Mujtaba, you are audible. Perfect, Ji. I'm just waiting for confirmation on the rest of the three because without an interaction with you, obviously, I can only answer and speak so much. अगर आपकी तरफ से input जितनी आपकी तरफ से input ज़्यादा होगी, उतना I would be in a better position to guide you. अच्छा, मुझे please अगर आप briefly ये बता दें that students who are currently in the meeting, आप लोग किस year में हैं? Are you all in the first year, second year, or we have a mix? And then I have a few follow-up questions, and then I'll get to whatever little I can share with all of you. Done with so Fasiullah is done with second year. We are yet to hear from the rest of the 4 people. Okay, so we have a final year student who's now will be commencing the. अगर आप लोगों के लिए अपने mics use करना convenient होगा, तो obviously that will that if possible for any one of you. Okay, so we have say for one person, we have I'm a third year, fourth year, so a fourth year student, a fifth year student, a third year student, and a fifth year student. Okay, Ji, perfect. Asha, the second question that I have to ask is that how many of you have had the opportunity of interning in a law firm, or how many of you come from a family of legal background, just so that I have an idea कि आप में से कितनों को on ground legal fraternity के बारे में and how things resolve or revolve around the courts उसके बारे में idea है. It would be great if you guys start speaking up. No legal background, no internships yet. So Fasiullah was done with second year as no prior experience. Another perfect, no legal background. Currently about to start an internship. Perfect. So I think every one of you is in the same boat insofar as my question is concerned. So the reason I'm asking you is that obviously, see, there are a lot of practical realities about coming into this profession, and my aim today is primarily to focus on telling you, informing you, and guiding you about anything and everything that you should be aware of the moment you step into this profession. Whether you are going to be choosing a corporate field, whether you will be choosing a litigation-oriented law firm for yourself. Okay, so we have one gentleman जिनके वालिद साहब हाई कोर्ट. And I'm assuming ये please मुझे clarify कर दें if he's working in so this question is only for Hasib. If he's कौन सी कोर्ट में practice करते हैं जी, based in इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और समेरल, जी बताइएगा. So जो मैं बात कर रहा था that आपको law, कानून, judgments, वकालत, advocacy, you can learn on the way, you can see and learn, you can absorb, आप वो सब चीजें सीख सकते हैं. But what I have personally faced is because I come from a family where there was no legal background. I had no idea as to how ये reality क्या है हमारे judicial system की till the time I was done with my degree and then the bar at law degree. So primarily मेरा focus वो होगा
during this time we have a lot of time on our hands. आप लोगों को किसी भी तरीके का सवाल हो in regards to what I am saying, in regards to some queries you have in your mind, please you can ask in the middle, or if you want to keep something at the end. But मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप साथ साथ पूछते जाएंगे तो आप लोगों के लिए भी और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी काफी आसानी हो जाएगी. So if I can start with sharing how I felt when I became a lawyer about 9 years ago, it was that एक बड़ा idealistic view था मेरे जहन में कि this is how courts are going to be, this is how the judiciary works, कि हम जाएंगे advocacy करेंगे. For me, I always had the clarity कि मुझे primarily litigation में जाना है, मुझे litigation करनी है, and this is the lifestyle I want to choose for myself. How I got to choose, or how I got that clarity, was by doing 2 internships. Although it's not a lot of experience, I would encourage all of you कि आपके पास जब time हो, whether it's summer break, whether it's a winter break, or whenever you can find, you should expose yourself to as much experience as you can, because one time आपकी life का all over कीमती है. The earlier you realize what path you want to take, the lesser the lesser disappointment, the lesser frustration जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा कि वो हमें फेस करनी पड़ती है. So coming back to myself, when I was a second year student, I did a corporate internship, and when I was a third year student, I did a litigation internship. I have done one in Islamabad, but मेरी practice सारी कराची की है. So मैं जो आपको इसमें यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि मैं जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज primarily focused and pertains to how the judicial system, the litigation system works in Karachi, or the corporate litigation or corporate law firm work in Karachi. Lahore mein, because we have friends, I've come to Lahore, मैंने देखा है, it's a bit different. तो आप लोगों को वो चीज़ भी ज़हन में रखनी है. अगर आप लोग लाहौर में बेस्ड हैं तो obviously आपके पास वहाँ की reality का ज़्यादा बेहतर experience होगा. So my journey, my experience that I've had, what I have seen over the years, वो मैं आपसे share करूँगा. So starting from the day I joined litigation, I can very vividly remember this sense of passion, this sense of zeal, this enthusiasm and energy that I would have every day, because उस टाइम पे हर चीज का एक चार्म होता है. Waking up, dressing up, going to court. When you are young, there is आपका mindset एक और different aspect पे चल रहा होता है as to when you have spent certain amount of time in any field. At that time, जो बहुत सारी harsh realities हैं of how frustrating, how unfortunately एक delay oriented हमारा system बन चुका है, and the fact that we have all made peace with this कि जी हाँ बस यही है, and for those of us who are benefiting from this system, we continue to benefit. Basically हम वो जो status quo के साथ बस अब इतना agree कर गए हैं कि हम चल रहे हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ हमें realize नहीं होती. It doesn't pinch you as much because obviously you're young, there is that energy. And सबसे बड़ा factor which I feel keeps you going is that constant reminder within you that keeps telling you कि जी we can change this, we can change this, we can change this. So what happens is that the moment you start, you get into practice. शुरू में वो सब चीज़ें आपको उस तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं करती जो कि बाद में जाके the same things which become a reason or a factor for all of those people. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे साथ बहुत सारे, when we started in litigation 8 years ago, there were, just to give you guys an example, कि अगर हम 8 लोग थे तो हम सबको 8 के 8 लोगों को बैक इन 2014-15 वो चीज़ें बॉदर नहीं करती थी जो 1 से 2 साल बाद 5 लोगों को 6 लोगों को करना शुरू हुई. एंड नाउ एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हम उस 8 में से with only 2 people who have survived in this for so long. Why am I using this word survival? I will build up on this as well, because this is
a lifestyle choice that you will be making for yourself. This is not a ये job, whether it is corporate, whether it is in-house, or whether it is litigation, तो खैर बिल्कुल भी नहीं. It is not, ये एक जिंदगी का तरीका है. ये आपकी लाइफ को डिफाइन करेगा. This will define your friendships. This will define your family life. This will define family life to the point your relationship with your parents, with your siblings, with your friends, when you get married, within your family, with your children. ये उन सब चीजों पे impact करेगा. So although you guys might feel that it is perhaps too soon, I am telling you that this is the time where you make that decision for yourself कि हमें अपने लिए जो path choose करना है वो कैसा होना चाहिए. So again, going back to what I was saying, the early years of my career, जिस time पे बहुत ज़्यादा enthusiasm था, and I was overwhelmed with this passion कि नहीं सब सही हो जाएगा. There will be that time कि अच्छा, अब आप लोगों को अगर आइडिया है कि जी हम किसी एक जज को देखते हैं, बड़ा खुश होते थे, अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बदल जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ होगा. उस चीज के ऊपर इंसान चलता रहता है. And over the years, from my personal experience, I realized that unfortunately, हमारे just as a single person, आप कुछ कर नहीं सकते until and unless this system is itself willing to change to the point कि जी as of right now, हम जिस जगह पे खड़े हैं in litigation, for Karachi, for Lahore, I think it's the same for Lahore as well. जो city court के हालात हैं, थोड़ा सा comparatively Karachi में the situation is a bit better, but in terms of the fact that there is that decorum is still there. Lahore में मेरे जो experiences हुए हैं वो इतने pleasant नहीं हैं. So with all of these things said, the first thing that I want to advise all of you is that आपका जैसे third year है, fourth year है, fifth year है, पढ़ाई के साथ साथ you guys identify to yourself कि आपको वो कौन सा एक element of law है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा intrigue करता है. वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, in the sense that आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक में स्पेशलाइज करना चाहते हैं. अगर आप लोगों को ये अभी तक क्लैरिटी अपने पास आ चुकी है कि ओके जी, दिस इज वन थिंग फॉर ईच वन ऑफ यू कि जी ये हमें समझ में आता है, दिस इज समथिंग फॉर माई सेल्फ. जो लिटिगेशन वाले हैं उनके लिए मैं भी नहीं बोल रहा, बट फॉर द वंस जो एकेडेमिया और फॉर द स्टडीज में वो चीज़ अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले आई वुड strongly recommend that all of you people should identify those subjects for you. What that does is that when you are choosing your career path at an early stage, there is the possibility of pursuing the higher a specialized degree, masters in that field. I'm sorry, I'm just losing my chain of thought. So the reason I'm saying this is that I don't, and what I feel is जो हमने जैसे I have a team of about 15 students. Sorry, 15. I have a team of 15 associates, जिसमें से 5-6 अभी students हैं. 10 of them are enrolled associates. What I feel is that a year or two into litigation, there is always that realization कि अच्छा जी ये lifestyle हमारे लिए नहीं है. वो lifestyle हमारे लिए क्यों नहीं है? Because रोजाना सुबह उठना है, रोजाना 8:30 बजे कोर्ट पहुंचना है, एट एन एवरेज 1 से 2 बजे तक कोर्ट में रहना है, उसके फौरन बाद ऑफिस आना है, एंड देन यू हैव टू वर्क अप अंटिल अनगॉडली आवर्स. देयर इज नो सेट टाइमलाइन, देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर. एज मच एज जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, द नेचर ऑफ लिटिगेशन इज सच दैट वो काम इतना डिमांडिंग है दैट आप उसको, you cannot put a cap on it. You cannot put a cap on the working time. You cannot put a cap on the working days. Obviously, ideally, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, but
it's a never-ending thing. It will always, there will always, work will always spill over to the next hour. Work will always spill over to the next day. Work will always spill over to the next weekend. Now, with all of that experience that I've gained, मैं आपको ये मशवरा दूंगा that आप अपने आप को from this time expose करें to as many opportunities of short internships as you can. Explore the idea of corporate internships, explore the idea of purely litigation internships, and also explore the idea of in-house internships. इन सब चीज़ों के बारे में एक हमारा वो एक सबकॉन्शियस नोशन बना होता है कि नहीं जी, कॉर्पोरेट काम में और इन हाउस काम में परहैप्स शायद वो मज़ा नहीं है या वो चार्म नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ दैट मैं 9 years ago आई वुड से कि नहीं जी, कॉर्पोरेट काम तो बिल्कुल मज़ेदार चीज़ नहीं है। एंड टुडे आफ्टर 9 years in litigation, the few things that intrigue me and give me that charm कि ये काम में मज़ा आ रहा है is that semi corporate commercial work, because for a lot of reasons litigation is frustrating and all of those things. So आपका कोई भी ये अपने लिए चीज सेट कर लेना कि नहीं जी, इस चीज में तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, ये मेरे लिए है ही नहीं, विदाउट गेनिंग दैट एक्सपीरियंस वुड बी रॉन्ग, वुड बी डेट्रीमेंटल टू योरसेल्फ। देन एक और बड़ा जो प्रैक्टिकल और रियल फैक्टर है which comes into play the moment you start your career is the lack of opportunity or the lack of quality opportunities that are currently available in the market. If I speak for Karachi and if I speak for, मैं आपको एक छोटा सा comparison देता हूँ in terms of litigation firms and compared with corporate firms. So कराची में at an average I think 25,000 वकील होंगे, 15-10 क्लोज फ्यू थाउजेंड लॉ फर्म्स रजिस्टर्ड होंगी, जिनमें से कुछ 100 जो हैं वो प्राइमरीली एक्टिव हैं, काम करती हैं। बट आउट ऑफ दोज लॉ फर्म्स देयर आर ओनली अबाउट आई थिंक less than 50 or maybe less than 30 law firms जिनके पास वो वाला क्वालिटी काम है और वो वाली अपॉर्चुनिटी है। देखें, काम हर किसी के पास होता है, सबको, देयर इज so much work in this country, in this city, in every city of Pakistan, कि हर किसी के पास करने को काम है। बट क्या वो काम आपके लिए है? क्या वो काम आपको वो अपॉर्चुनिटी, क्या वो जगह आपको वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी तैयार है या नहीं? जब ये वाले सारे के सारे फैक्टर्स आप मेडल इन करते हैं विद रियलिटी कि जी अच्छा मुझे अपने लिए क्या डिसीजन लेना है, तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत थोड़ी रह जाती हैं। माशाल्लाह आप लोग 5 साल की पढ़ाई करेंगे। आई होप ईच वन ऑफ यू हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड परसू मास्टर डिग्री। आप में से किसी को सोलिसिटर बनना है, आप में से किसी को बार एट लॉ करना है, आप वो सब करें। बट वंस यू कम बैक टू दिस country, the lack of quality opportunity is something which is very very disheartening and it is very very real. उसका प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छी लॉ फर्म्स हैं, there is only so much of number of associates or internships that they can offer. हमारे मुल्क में काम का एक तरीक़ेकार है कि जी नाम है तो काम चल रहा है। वो एक इंसान ओरिएंटेड प्रैक्टिस होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो लिटिगेशन हो। लिटिगेशन तो प्राइमरीली आप हमेशा सुनेंगे दैट लॉ प्रैक्टिसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ अ पर्सन। it shouldn't be the case. It should always be the case कि हाँ जी ये लॉ फर्म है जिसमें 15 लोग हैं, 20 लोग हैं of every level जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। And the moment you hire the services of a law firm, you just don't get one person, you get a team of people who are always there. But unfortunately हमारी जो clientele है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। No matter how much you try, as now a person, मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत clientele तो I can advise you on that. I can tell you from experience कि जी they at the end of the day the clients are individual oriented. Now that is something which in itself creates so many issues कि जी जब किसी भी client से
एक पार्टनर किसी फर्म का बात करता है जिसके वो डायरेक्टली क्लाइंट है, वो बात करते हैं, तो क्लाइंट का कॉन्डक्ट, क्लाइंट का डिमीनर, क्लाइंट का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, एंड ऑब्वियसली व्हेन एसोसिएट रीचेस आउट देम, वो एक बड़ा डिफरेंट होता है. नाउ ये सारी चीजें आप जब फैक्टर इन करते हैं विद द फैक्ट कि जी हर साल हमारे पास सिर्फ कराची के एक बड़े लॉ कॉलेज से 2000 या 3000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं. देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस जो LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री कराते हैं, उनसे एट एन एवरेज कुछ कलेक्टिवली 1000-1500 बच्चे ग्रेजुएट करते हैं. सो विद इन इनफ्लक्स ऑफ about approximately over 3000 students every year, there are not enough opportunities of quality work available which can groom law students to achieve their own potential, to groom them to the point that they can become and shine. Unfortunately उसकी वजह से जो अब आपको, अगर आप में से कोई नोट कर रहा है तो प्लीज ये चीज अपने लिए नोट कर लें. मैं तो आपको बिकॉज एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ माइंड बोल रहा हूँ. तो जो पहली बात मैंने आपसे कही थी दैट हमारा सिस्टम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, उसके साथ एक पैरेलल रियलिटी चल रही है ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज आई थिंक अक्रॉस द कंट्री. आई हैव फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद, वहाँ की तो मार्केट और भी छोटी है, वहाँ की क्लाइंटल और छोटी है, वहाँ की पेइंग पावर बहुत छोटी है. लाहौर ऑन द अदर एंड हैज अ bigger legal market. But again, even for a place like Karachi जहाँ पे perhaps सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है काम का, वहाँ पे भी एक बड़ा सीरियस और severe deficiency है of quality work. So अब at this point I would like कि अगर आप में से कोई किसी के जहन में कोई सवाल है as to what all I have shared up till now regarding the initial steps that you should be taking, and if अगर आप में से किसी को ये clarity चाहिए that या कोई clarification या कोई further information चाहिए about the two topics that I have spoken, the two mini topics that I have spoken, so please अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे. Question anyone regarding starting your career? Okay, I don't think anyone has a question. You should have a question, guys. There's only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of you. One person should have a question. Again, I can continue to speak. I have a list of 7, 8 points that I've prepared. I can speak from my mind. मैं कुछ लिख की भी तो है नहीं जिससे बोल रहा हूँ. तो if you guys don't ask questions, very soon I will run out of things. सवाल भी अपने दिमाग में अगर मुझे बनाना है तो फिर वो बड़ा लिमिटेड चीजें रह जाएंगी मेरे जहन में जिनके बारे में मैं. अच्छा, someone is using. Zarsha, please unmute yourself and ask the question. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. I wanted to ask about the scope of corporate law in Pakistan. Like you said, that litigation, there aren't enough opportunities. So how is it for corporate and in-house? And can you go into more detail for that, please? Okay, perfect. Thank you. First of all, thank you for this, for asking this question, because I just realized that litigation के बारे में तो मैंने बताया, corporate के बारे में नहीं बताया. So the same, if not identical terms, but the same goes for corporate law firms as well. Karachi में, Islamabad में, Lahore में, handful of firms जिनके पास quality corporate काम है, which will allow you to, देखें काम की नौयत बहुत सारे लॉ फर्म्स पे डिफरेंट है. कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स पे जिनके पास मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, जिनके पास इंटरनेशनल क्लाइंटेल है, बट just because of the fact कि एक law firm के पास वो वाली clientele है does not mean that that is the right law firm for a fresh law grad.
बिकॉज होता क्या है कि for anyone of us to gain experience, we need a certain kind of work जिसके ऊपर हम basically हम काम करके वो necessary experience हासिल कर सकें. And if I have to phrase it a bit more informally, तो ऐसा काम कि जिसके ऊपर हम गलतियां करके सीख सकें, वो वाला काम इवन फॉर कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स उस तरीके से अवेलेबल नहीं है. बहुत सारी जगहों के पास है. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी नहीं है. आप देखेंगे आपके साथ लोग ग्रेजुएट होंगे, दे विल अप्लाई, दे विल get to law firms, they'll start working, they'll excel in their careers, but there is a lot of real things जिनके बारे में unfortunately बात नहीं की जाती. Those of us who are lucky, who are blessed, who get that opportunity, उन सब के लिए तो ठीक है, but there is a vast number of students every year जिनको वो opportunity नहीं मिलती. And so if I have to answer your question specifically as far as corporate law firms are concerned, yes, there are perhaps a bit more opportunities available because corporate law firms में वो वाला influx नहीं होता. एक बहुत बड़ी lot, if I am giving you a hypothetical example, hypothetical numbering, तो 100 में से 50 or 60 people will go, or 70 people will go to litigation. That only leaves a small number, 30 people for corporate law firm, जिनमें से भी अगर कुछ इन हाउस चले जाते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स पे वो बर्डन नहीं पड़ता. और कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के पास अक्रॉस पाकिस्तान द नंबर ऑफ एसोसिएट्स, उनका जो हेड काउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट काम को डिलीवर करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए. सो from that aspect, corporate में opportunity बिल्कुल available है. There are good opportunities available, but yes, क्या वो opportunity आपके लिए सही है या नहीं है, ये चीज आपको खुद काम करके, आपको खुद अपने आप को उस चीज से एक्सपोज करके हासिल करनी है. एंड बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फयाज, मैं सब क्लैरिफाई कर दूं जी, इन हाउस में जो काम होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है एज टू द नेचर ऑफ the entity that you choose for yourself. If you go into the banking sector as an in-house counsel for a bank, आपका काम state bank compliances, आपका काम banking courts, आपका काम जो banking FIA financial crime वाली aspects है उनको देखना होता है. So अगर आप अपने लिए एक बैंक का in-house counsel बनना choose करते हैं तो then that is something you are choosing for yourself. आपको उसमें goes without saying कि एक बैंक के लिए काम करते हुए एनर्जी लॉ के ऊपर या किसी मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर काम करने को नहीं मिलेगा. यू विल ऑलवेज बी देन लिमिटेड टू व्हाटएवर एवेन्यूज द बैंक इज डूइंग. जिन वेंचर्स पे वो काम करें वो सब आपके लिए एवेन्यूज खोलेंगे. इफ यू गो टू द बिग कंपनीज लाइक एंग्रो, XYZ, जो बड़ी एंटिटीज हैं जो काम कर रही हैं, जिनके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ी हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, तो यस, वहाँ पे आपका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू वर्किंग फॉर अ बैंक और अ वेरी स्पेसिफिक एंटिटी. इन हाउस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इन हाउस में वो वाला प्रेशर और वो वाली इनफ्लक्स नहीं है अगेन जो लिटिगेशन में है. There are companies which are doing immensely well in Pakistan, but again जब आप उनको एक पेपर पे लिखेंगे तो I think in a city like Karachi or in a city like Lahore, if you narrow down अपने factors, individual factors में आप ऐड करेंगे तो 8 से 10 या 10 से 12, चाहे वो corporate law firms हों, चाहे वो in-house opportunities हों, वो रह जाती हैं. So I hope that answers your question. If there is a follow-up question from Afshan, we could take it after the question from Fayaz. Yes, sir. I had a question that which area of law is most beneficial to pursue for recent graduates? अच्छा, अगर मुझे आप ये क्लैरिफाई कर दें कि किस तरीके से बेनिफिशियल आप चाह रहे हैं, मतलब बेनिफिशियल इन द सेंस ऑफ आपकी लर्निंग के लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो, ये जरा प्लीज मुझे आप अपने क्वेश्चन पे क्लैरिफाई कर दें. लर्निंग के लिए बेनिफिशियल जो होने ओके, जो लर्निंग. हो सकती सो है. ये आप लिटिगेशन से पूछ रहे हैं ना? जी सर. लिटिगेशन में, अच्छा, लिटिगेशन में देखें, लिटिगेशन में दो तो नहीं, खैर 3 प्राइमरी
फील्ड्स हैं जिनको आप अगर डे वन से चूज करेंगे तो फिर आपका वो दे विल डिटरमिन योर करियर पाथ। वन इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में एक चोरी चाकू वाला क्राइम है जिसमें मर्डर, हार्डकोर क्रिमिनल ट्रायल्स, वो सब चीजें आती हैं। देन देर इज ए वाइट कॉलर क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस जिसमें आपके पास नैब, एंटी करप्शन, FIA, ये वाला काम है। फिर सिविल लॉ है। सिविल लॉ में आपके पास जो आपकी किताबें जो आप अपने कोर्स में पढ़ते हैं, विच इज CPC, विच इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ, वो चीज फॉल करती है सिविल लॉ के अंदर। और एक फिर स्पेशलाइज फील्ड है, वो टैक्स की फील्ड है। उसकी किताबें, उसके बेसिक्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी इंटरप्रिटेशन, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो आप देखेंगे जो टैक्स का काम करते हैं वो प्रैक्टिस में वो एक कम्प्लीटली सेपरेट रहती है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल वो वाला एक्सपोजर चाहिए कि मैं लिटिगेशन प्रैक्टिस करते हुए अपने बेसिक सीधे कर लूँ, तो द क्लियर आंसर इज सिविल लॉ। आपको सिविल लॉ में भी ऐसी जगह या ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको ये ऑफर कर रही हो कि जहाँ पे CPC का इस्तेमाल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इस्तेमाल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इस्तेमाल होता हो और सिखाया जाता हो, वो जगह आपके लिए बेस्ट है। देखें, अपॉर्चुनिटी होगी। पढ़ना किताब को आपको थोड़ा बहुत पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ऐसे मेंटर्स मिलें जो आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें और आप लोगों को एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से या वो जो आप चीज पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं। एक और फैक्टर जो कि लिटिगेशन में बहुत बहुत ज्यादा है, एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट इंडिविजुअल ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, दैट and this goes for a lot of big names and of individual lawyers in our country, कि वो they are not willing to share that their practice with everyone. They are not willing to share their knowledge with anyone. लेकिन जी मैं अगर आज एक्सपेक्ट करूं कि मेरे पास एक फ्रेश ग्रेजुएट आता है और एक महीने के अंदर उसको समझ में आ जाए कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसको प्लीडिंग में क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी, उसको ये भी पता हो कि कानून की कौन सी रेलेवेंट प्रोविजन को साइट करना है, और उसको ये भी पता हो कि रिसर्च करनी है, दैट इज ये मेरी दिस इज विल बी ऑन मी। ये मैं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा हूँ और उसके साथ भी ज्यादती कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जी हमारा सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें nobody is willing to take a moment, to take a pause, to take a break and say कि नहीं जी, okay, today I'm going to sit down with 3 of my associates and I'm going to tell them कि जी CPC के section 1 से लेके 10 तक का इंटेंट का पर्पस ये है। उसकी भी एक वजह है कि वो क्यों कोई नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन इंडिविजुअल ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। मैं जब सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक कोर्ट में हूँ या 2 बजे तक कोर्ट में हूँ और 4 बजे से 6-7 बजे तक मुझे मीटिंग्स लेनी है और 7 बजे से 9 बजे तक मुझे अगले दिन का काम करना है, तो हफ्ते के किसी भी दिन में शायद कोई 1-2 घंटे बीच में किसी दिन फॉर अ डिफरेंट डे मिल जाए, बट वो टाइम नहीं है किसी के पास, स्पेशली फॉर द बिग नेम्स वो टाइम नहीं है किसी के पास। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फयाज, सिविल लॉ एंड अ प्लेस वेयर आई वुड से आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने वाला मेंटोर हो। आप जब अपने लिए वो जगह चूज करें, इट विल ग्रेटली मैटर हु योर मेंटोर इज। वो भी आपका वो शख्स आपका उस्ताद होगा। आप उससे बहुत सारी चीजें दे सीखेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके साथ आप काम करेंगे, आप वो आदात, आप वो तरीके, आप वो चीज इनहेरिट करेंगे ना चाहते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली आपने उस जगह पे दिन के 12, 14 या 16 घंटे गुजारने हैं एज ए लिटिगेशन लॉयर, तो दैट विल डिफाइन हु यू आर, यू विल बिकम दैट पर्सन। तो ये चूज करते हुए मेरी एक सजेशन है कि आप लोग इस चीज के ऊपर जरूर गौर करें कि जिस इंसान के साथ आप काम करें वो इंसान खुद फितरतन कैसा। अगर तो वो आपको वो चीज ऑफर कर सकता है तो देयर इज नो नथिंग लाइक इट इन द वर्ल्ड। I hope that answers your question. Now we have another question from Afshan. Please go ahead. This is a follow-up question. I'm sorry, आपकी आवाज थोड़ी सी inaudible हो गई है। Am I on now? It's breaking.
How about now? Yes, it's perfect. Abadi. Okay, so this is a follow-up question to the question I previously asked. So I wanted to ask about corporate and in-house opportunities in Islamabad. Like if you can provide details on that. Okay. So Islamabad की आप लोगों की information के लिए, because I can say this because I was born in that city, raised in that city, I've lived in that city, but I've only briefly worked or I've done an internship वहाँ पे. इस्लामाबाद का general जो what's the word for that? इस्लामाबाद में एक बड़ी saturated market है. वो हमेशा से इसी तरीके से है. उसमें मैंने since the time I was born, grown up, I have not seen a change in that. इस्लामाबाद में corporate law firms, I don't think किसी का भी head office इस्लामाबाद में है. जो पाकिस्तान में बड़ी law firms हैं, या तो उनका head office कराची में है. If you take the names of Ria, Haider Mota, all of these firms जिनके पास international clientele का काम है, they are either primarily based in Karachi or they are based in Lahore. उनके associate offices हैं इस्लामाबाद में और उनके पास भी अच्छा काम है. There are 2 or 3 part, but obviously कराची में let's say एक corporate firm के पास अगर 7 corporate partners हैं, तो इस्लामाबाद में वो 2 या 3 होंगे. Obviously वहाँ की market छोटी है. The same goes for in-house opportunities. In-house opportunities इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा है because a lot of whether it is startups, whether it is government entities, otherwise भी इस्लामाबाद में head offices हैं. Opportunity of in-house इस्लामाबाद में बहुत आसानी से मिल जाती है, is what I've seen in my personal experience. मेरे दोस्तों को who have tried, whether it is the this modeling jazz industry in सब जगहों में, चाहे वो banking sector हो, because वहाँ पे I think इतना ज़्यादा वो नहीं है, डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मेरे हिसाब से शायद इन हाउस चूज नहीं करते इस्लामाबाद में. इसलिए इन माय एक्सपीरियंस आई थिंक इस्लामाबाद में देयर इज ए ग्रेटर नंबर ऑफ इन हाउस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एज कंपेयर टू कराची, बिकॉज कराची में कंपटीशन भी फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होता है. I hope that answers your question. If you have anything else, otherwise we will move forward to the few points that I've left. Thank you. This answered my question. Thank you, Jitik. Okay, so with all of this said, एक चीज जो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, and you should discuss this with your friends and your family जब आप ये अपने final years में होते हैं, is the opportunity of pursuing higher education. Whether it is a master's degree, whether it is a postgraduate diploma, whether it is a 3-month summer vocational course, Bharat Law hai, I would strongly advise and recommend each one of you to, if the circumstances allow, I for one come from very humble backgrounds in life. We have been blessed with, alhamdulillah, not that we are deserving of it, but एक टाइम पे वो डिबेट थी, और मैं ये बड़ी प्रैक्टिकल बात आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ कि मेरी अपने वालिदैन के साथ डिस्कशन थी कि जी देखें, मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस पे जवाब था कि अच्छा बेटा, फाइनेंसेस आप पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा. सो मेरा आप लोगों से ये, I can share from my experience that if the opportunities allows, please take the opportunity of going abroad and studying. This will shape your personality. This will groom you in a manner जो कि आपको कोई और experience नहीं offer कर सकता. Master's degree हो, academic है, बहुत आसान, बहुत laid back होता है, but going abroad, living there, studying on your own, this उसके अंदर एक inherent आपकी ज़ात में एक discipline आ जाता है. There is a structure that can only be achieved if you take that opportunity. तो अगर आप में से कोई pursue करना चाहता है, तो मेरा आपको suggestion होगा that you do it. And the ideal time, now a very big question that I think
मेरे एसोसिएट्स में और अपकमिंग स्टूडेंट्स में होता है कि जी what is the ideal time to go and pursue this opportunity of going abroad, whether it is a year into practice, whether it is directly after graduating, or whether it is a year or two after graduating के आप थोड़ा बहुत काम कर लें। तो इस पे मेरा सजेशन है आप लोगों को कि देखें जी, जो लिटिगेशन वाले हैं और जिन्होंने अपने जहन में ये माइंड बनाया हुआ है कि हमने भारत लॉ करना है, तो उसके लिए आपके पास अगर 3-4 महीने का या 5 से 6 महीने का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए बार के कुछ जो मॉड्यूल्स हैं, जो कि सबसे आसान मॉड्यूल्स हैं, एडवोकेसी है, क्लाइंट मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बिकॉज आपको वो एक्सपोजर पहले मिल चुका होगा। अदर देन दैट, बार एट लॉ के लिए पाकिस्तान का एक्सपीरियंस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको एड करेगी कि आप, it's the exposure that will aid you, it will grow your personality, वो तो आपको मिलेगा, बट इससे ज़्यादा बार एट लॉ के लिए कोई एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता। एक और चीज़ जो कि मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि वंस यू गेट इनटू दिस डीप वाटर ऑफ, जब आप काम में लग जाते हैं, स्पेशली जब व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ नेम फॉर योरसेल्फ, this goes for people who want to pursue litigation. Litigation में एक दफा जब काम आना शुरू हो जाता है, तो the lifestyle and the dynamic of the work is such that it will not allow you that opportunity to go abroad. मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आज आप ग्रेजुएट करते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे अपना काम करना है, या मैं प्रो बोनो काम कर रहा हूँ, या मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ इंडिविजुअली, मुझे किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना, आई जस्ट वांट टू टेक ऑन वन केस। आप वो एक केस लेंगे, वो बहुत बेसिक सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के जी, वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी, बहन भाइयों के बीच में बंटवारा होना था, झगड़ा हो गया। अगर आप इवन इफ यू टेक ऑन दैट वन केस, विद आर सिचुएशन लाहौर में इट्स डिफरेंट, बिकॉज वहाँ आपका पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो नीचे पूरी की पूरी सिविल जजेस के पास है, हमारे पास इट्स डिफरेंट। वी 50 मिलियन एंड अबव जो है वो सिंध हाई कोर्ट के पास है, बट इन दोनों जगहों में, चाहे वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इफ आई टेक ऑन अ केस ऑन द 10th of July, आई एम नाउ ऑक्यूपाइड फॉर 1 डेट और 2 डेट एवरी मंथ जिस पे वो केस लगेगा। उस डेट पे 80% ऑफ द टाइम प्रिलिमिनरी डेट्स पे तो कुछ नहीं होगा, बट ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल इफ यू टेक ऑन दैट केस, आपको क्लाइंट के लिए वहां पे मौजूद होना पड़ेगा। लिटिगेशन में जब आप इस साइकिल में आ जाते हैं कि आपके पास काम आ रहा है, आप काम लेना शुरू कर दें, आप क्लाइंट्स को जवाब देना शुरू कर दें और आप काम में लग जाएं एक दफा, तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव इट एंड देन गो अब्रॉड। एंड बिकॉज आपको पास जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि एक तो अच्छा, हाँ जी ये जो काम है इसका क्या करें, ये काम किसको दे के जाएं, और फिर एक सबकॉन्शियस में थॉट होती है कि अच्छा जी आई विल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो मेरा ये सजेशन है, ऑल्दो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन करने में भी कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिज्यूम, जो नसीब में है वो तो मिलना ही मिलना है, पर अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज उसको जितना जल्दी परसू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी है, बिकॉज देन दैट रोड इज क्लियर कि अच्छा जी अब मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं भारत लॉ करके आ गया हूँ, मुझे अब इस अपनी डिग्री को यूटिलाइज कैसे करना। इसी के साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू गो अब्रॉड एंड डू अ डिग्री ऑफ मास्टर्स, एंड फॉर दोज ऑफ यू जो किसी भारत लॉ के अलावा SQE करना चाहते हैं, आई वुड strongly advise you that you explore the opportunities of working abroad. I don't want to sound like someone कि मैं आप लोगों को discourage कर रहा हूँ, but I hope you realize this sooner कि हमारे पास वो opportunity, again I keep repeating the word, वो quality opportunity नहीं है that will allow you or allow any one of us to grow. वो हम में से कोई 100 में से कोई एक आध इंसान वो शायद इतना खुशकिस्मत हो कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट अदरवाइज इस वक्त, और सो आई रीफ्रेज दिस थॉट, जो आपका लिटिगेशन का काम है वो तो बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री।
आपके मुल्क में खुशहाली है, बाहर से काम आ रहा है, तो लिटिगेशन का वॉल्यूम आप देखेंगे बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का एक एतबार होता है। एक जब जब काम चल रहा है तो झगड़े डिस्प्यूट्स तभी होंगे जब काम हो रहा होगा। जब अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा, अगर आप कोई एक भी फील्ड उठा के देखें आज के दिन में, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, आपके मुल्क में वो काम ही नहीं कर रही। जब वो एंटिटीज काम नहीं कर रहे तो ना कोई डिस्प्यूट होगा, ना कोई कोर्ट जाएगा, ना आपकी जरूरत पड़ेगी। तो विद दिस reality of the country's political and economic situation in mind, I would strongly urge each one of you कि अगर आप में से कोई भी बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी हासिल करके उसके ऊपर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। वो एक्सपोजर, वो काम बहुत मुख्तलिफ है as to what we do in Pakistan. The transactions, the deals that are going on in the international world, जब आप उनको in comparison पाकिस्तान रखेंगे तो we are not doing anything. Being a part, having this opportunity कि मैंने कुछ international transactions पे काम किया है, I am telling each one of you that the numbers are so big that let's say कि अगर हम एक साल में जिस फाइनेंशियल अमाउंट के ऊपर काम करते हैं पाकिस्तान में, दैट विल बी द वो इक्विवेलेंट होगी किसी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में जिसमें इंटरनेशनली लॉ फर्म्स काम कर रही होंगी। तो विद दिस मच ऑफ अ डिफरेंस इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, आई थिंक वी आर एट अ लॉस। हम लोग we suffer because of where we are located. We suffer because of this dynamic. तो इन सब चीज़ों को भी प्लीज़ आप कंसिडर करें। एक बात जो मैं आप सबको बता दूं, मेरे पास इन द फर्स्ट 2 years देयर वर दोज अपॉर्चुनिटीज जब मैं बैठ के अपनी सीवी बनाता था एंड आई वुड अप्लाई इंटरनेशनली जस्ट टू सी कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड 100 में से एक अगर कोई जॉब ऑफर आती थी तो आई वुड गिव इट अप थिंकिंग कि नहीं जी, अपना मुल्क है, इस मुल्क के लिए करेंगे, जो भी है इसी मुल्क में रहेंगे, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे मर जाएंगे। बट आई थिंक कि उस टाइम पे अगर मैं अपॉर्चुनिटी वो एक्सप्लोर करता तो शायद मेरी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट के लिए दैट अपॉर्चुनिटी वुड हैव बीन बेनिफिशियल। एंड इन दी एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे ये डिसीजन अपने लिए लेना होता कि हाँ जी मुझे वापस आके पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान के लिए करना है, तो टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी वुड हैव बेनिफिटेड मी एंड इट वुड हैव बेनिफिट everyone around me in the longer run, because obviously मैं वो experience gain करके आया था। आज without having that opportunity or without having that exposure, I think I am at a loss. So from that aspect, I wanted to share this with you people कि आप इस चीज को please explore करें अगर आप कर सकते हैं। The GCC market is growing. It is not only Dubai that is offering जिनके पास स्कोप है, जिनके पास मार्केट है। सऊदी अरब इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट leader of the GCC, वो बनेगा in the sense it is going to beat Dubai. The next 5 years are going to define the vision 2030 in Dubai in Saudi is something जो कि उस खत्ते का डायनामिक चेंज करेगा। As of right now, there is a great demand of स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाले लॉयर्स की भी डिमांड है, और अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है बिकॉज उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है उस जगह में। अब सिंस द MBS regime वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, to the point that US law firms, the British law firms are opening up their offices there and they're moving one of their lead partners to Saudi in Riyadh, in Jeddah. So just to give you an example कि ये एक opportunity है, it is not just England, it is not just US, it is the GCC market, and the GCC market is far more than Dubai. तो अगर आप में से कोई उस लाइन को परस्यू करना चाहता है तो प्लीज वंस यू आर डन विद योर स्टडीज उसको करें। वहाँ की क्वालिफिकेशन भी आसान है, एक SQE दे के आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, एंड इवन विदाउट एन SQE आप लोगों को दे आर ऑफरिंग जॉब्स, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? यस, तला कुरैशी साहब। जी तला, प्लीज।
Hello, Sandeep. I just wanted some clarification. Okay, so my family is actually settled in the UAE. I just wanted to know कि जो BLB है, how well does it translate into another jurisdiction? So अगर मैं जैसे यहाँ से graduate होके अगर मैं वापस UAE जा रहा हूँ, जी how beneficial is it and how exactly does that process work? देखिए बेनिफिशियल आपकी जो बेसिक डिग्री है वो बेनिफिट आपको देयर इज ओनली सो मच बेनिफिट दैट इट कैन गिव फॉर यू BA LLB बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला किया आई हैव नॉट डन द BA LLB आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन व्हाट देयर रिक्वायरमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंसी और क्वालिफिकेशन बट एज फार एज आई नो इस वक्त UAE when I say the GCC it's Saudi what I identify दुबई में देखें दुबई में अगेन पूरी दुनिया से वकील आके बैठे हैं मोर देन पाकिस्तान इंडियंस आर रूलिंग द मार्केट इन दुबई उन लोगों का BA LLB बिकॉज उनका भी बड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड विदाउट हैविंग एनी फॉरेन एजुकेशन दे आर ऑफर्ड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री इफ योर क्वेश्चन इज कि क्या आपको जॉब मिल सकती है या नहीं बड़े आराम से मिल सकती है corporate jobs हैं वहाँ पे सारी the one thing that you cannot do in across GCC is that Saudi courts में UAE courts में आप appear नहीं हो सकते वो उनकी ममानियत है that you need to be by birth either an Emirati to practice in the UAE courts or you need to be by birth a Saudi to practice in those courts. इन द लॉन्गर रन वहाँ पे लाइसेंस एक्वायर करना या अपनी प्रैक्टिस सेटअप करना दुबई में इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट इट्स अ वेरी सेट अमाउंट कि आप जब 3-4 साल काम कर लें you will then be in a position to get your own license. उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए भी just to clarify दुबई में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं उसकी सिर्फ एक कॉस्ट है if you can bear that that's all that is required. वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन या वो कोई चीज़ किसी तरीके से नहीं लेते. The same goes for सऊदी में भी लाइसेंस एक्वायर करना मुश्किल है बट किसी एंटिटी जिसके पास वो लाइसेंस हो उनके लिए काम करना उनके साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं है. So yes, your degree is beneficial to the extent that it will give you that basic platform that is required. But obviously, if you supplement your degree with something more specialized, there will be nothing. अगर आप फोकस कर रहे हैं कि आपकी आई थिंक आई हर्ड यू राइट कि शायद आपकी फैमिली वहाँ पे बेस्ड है तो अगर आपका इवेंचुअल गोल है टू गो बैक तो मेरा सजेशन होगा दैट यू परसू ए मास्टर्स इन समथिंग जैसे सऊदी में दी एनर्जी के ऊपर बहुत स्कोप है द ऑयल इंडस्ट्री जिसके ऊपर बहुत स्कोप है शिपिंग इंडस्ट्री भी बहुत स्कोप है बिकॉज जो दमाम का पोर्ट है वो आई थिंक पूरे GCC में सबसे आसान पोर्ट है फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री तो इस तरीके की वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड दे विल ऑल बिकम अवेलेबल टू यू द डे यू एक्वायर यू ग्रेजुएट एंड यू एक्वायर योर बेसिक लाइसेंस इन पाकिस्तान. As a follow-up question, so Yes. I'm entering my final year now. So Yes. I'm currently deciding कि मतलब graduate होने के बाद do I foreign से मतलब do I start working or do I pursue and just currently I have a plan to do an LLM from the UK. So Okay. is an LLM the right choice of a plan to work a corporate job or an in-house job? देखिए LLM आप कॉर्पोरेट जॉब और इन हाउस जॉब अगेन टू जैसे मैंने पहले बोला है कि कॉर्पोरेट जॉब आप अपने BA LLB के पास भी ले सकते हैं. इट इज फॉर यू टू डिसाइड व्हाट दैट LLM हैज टू ब्रिंग टू यू एज अ पर्सन. दैट LLM देखिए LLM को एक स्पेसिफिक फील्ड में आप करेंगे. अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में करना है लेट्स से यू हैव टू ऑयल एंड गैस में जाना है या आपको शिपिंग में जाना है तो अनटिल एंड अनलेस you have some exposure of what the job requirements are क्या on ground because मैंने वो काम कभी किया नहीं है तो I don't know उस काम में क्या क्या specialized skills की ज़रूरत पड़ सकती है. The basic जो corporate के कामों की चीज़ें हैं जो mergers हैं जो acquisition है जो contract vetting है SPAs हैं वो सब तो obviously across the board standard है but अदर देन दैट क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है ऑब्वियसली वो आपको उसमें कुछ उस फील्ड में कुछ अर्सा काम करके ज़रूरत पड़ेगी. सो LLM के लिए भी अगर आप परसू करना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन है आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप और आपका एंड गोल है कि आपने यू हैव टू यू इन द नेक्स्ट 5 years you see yourself based in the UAE countries. सो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने लिए वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें
if you can work for 6 months, work for 10 months just to get that preliminary idea and then go for LLM. If you don't want to do that और वो subject आपको फिर भी intrigue करता है कि हाँ जी मुझे यही करना है, तो go and do your LLM. That LLM will repay you in so far as your personal grooming is concerned and in your professional grooming. जब आप apply करेंगे, obviously having a degree, तो let's say you get a degree in shipping law and I have 8 years of experience. So you as a fresh grad with a degree as compared to 8 or 9 year experience, you will have the benefit for someone looking for that specialized skill set. वो experience वाला आपको beat नहीं कर सकेगा. But अगर आपको एक general LLM कर लेते हैं, because I think LLM में भी वो जो कुछ subjects हैं जो बिल्कुल basic standard LLM कराते हैं, जो corporate और वो वाला होता है, I think उसका कोई इतना substantial फायदा नहीं है. वो उस तरीके से help नहीं करते या aid नहीं करते जिस तरीके से आपको एक specialized LLM help कर सकता है. That's the plan to be specialized or not general LLM. I'm sorry, आपकी आवाज तला बहुत break हो रही है, so it's very inaudible. I'm sorry, I was just saying that's the plan to be a specialized LLM, not Okay, so perfect. आप उसको pursue करें, आप अपने लिए वो subject identify करें, and my best wishes for you. I hope you succeed in doing that and then finding yourself a great opportunity in the UAE. Ji Afsha, you have a question. I have 2 questions. The first one is, how does the BA LLB degree translate into the UK and US jurisdictions? Like, how can you practice over there with that degree? Okay. And should I tell you the second? Ji, I'm writing it down. And the second question is, what's the scope of legal consultancy in Pakistan? Okay. Perfect. बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों, especially the second one. देखें, in England, to practice as a lawyer, वो वहाँ पे बड़ा clear distinction है. You can either be a solicitor, you can either be a barrister. अब वो दोनों में काम करने के लिए आपको जो basic degree है, वो बार लॉ की या solicitors qualifying course की, वो complete करना लाजमी है. और उसके बाद जो फैक्टर है जो कि आप जो which determines कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते is the opportunity for pupillage. In England, that opportunity is so less कि मैं आपको just to give you an example that अगर आप 2024 में apply करते हैं for a pupillage, तो you are applying for the session for the pupillage year starting 2025-26 और 2026-27, तो वो 2 साल in advance चल रहा होता है. इंग्लैंड में with the Brexit थोड़ा सा फर्क पड़ा था, but obviously because हमेशा से pupillage की opportunity नहीं होती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे pupillage, especially for Pakistani students with BLLB or the University of London LLB, सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि हमें pupillage नहीं मिलती. Until unless we know someone, we have a direct contact, we are not able to get that opportunity directly for ourselves. Pupillage के बगैर आप वहाँ पे किसी किस्म की practice नहीं कर सकते, whether it is the bar at law or the जो solicitors वाला route है. Solicitors का scope England में बहुत limited है. The client comes in, he meets the solicitor is who will do the basic paperwork, and then the case will be sent to an external counsel who will appear in court, who is titled as the barrister. और barrister का काम वो case with those documents pleadings के साथ कोर्ट में प्रेजेंट करना है. solicitors कोर्ट में appear नहीं हो सकते, और barristers by virtue of their cab rank rule और उन सब regulations की वजह से वो solicitors का काम नहीं कर सकते. तो in the UK तो that is very clear कि आपको चाहे वो BLLB है या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ है, आपको ये दोनों डिग्रीज में से कोई ना कोई एक चीज करनी है to be able to practice there in any manner. In the US, जो जी फसीउल्लाह आपका सवाल है, is it related to this particular point? Yes. Not related to this. Mine
it would be the next question. You can answer this. Acha, okay. So Afshan, you had something to say? Oh, I thought you're asking me that question. Okay. So अब यूएस में इन अक्रॉस द स्टेट्स अगर आपको वहाँ पे ये सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स वाला फर्क नहीं है, वहाँ पे लॉयर है, दैट लॉयर कैन बी ए पर्सनल इंजरी लॉयर, दैट लॉयर कैन बी ए शिपिंग का लॉयर हो सकता है, दैट लॉयर कैन बी ए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉयर. वो अगेन स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा सिमिलर टू पाकिस्तान इन द सेंस कि वहाँ पे जी वकील का दफ्तर है जिसमें आप वॉक इन करते हैं, एंड दैट लॉयर विल प्रोवाइड यू द रेमेडी. वो केस बनाएगा भी खुद, वो आपसे भी मिलेगा. वो अब ऑब्वियसली वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको लाइसेंस चाहिए, दे that you cannot achieve until unless you qualify for their bar exams and all of those states. पाकिस्तानी डिग्री पे यूएस में जॉब नहीं मिलती until and unless you have a supplementary degree from the US. उसकी एक वजह है कि जब हमारी डिग्रीज कन्वर्ट होती हैं तो यूएस सिस्टम में कन्वर्ट होके हमारे वो क्रेडिट्स पूरे नहीं होते. मैंने अपनी जब डिग्रीज कन्वर्ट कराई थी तो देयर वाज, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल कोचिंग है, तो हमारे वो जो इन रिक्वायर्ड आवर्स हैं वो पूरे नहीं होते. बट BLLB बिकॉज इट इज़ अ 5-year प्रोग्राम और आप लोग ऑन कैंपस पढ़े होते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा होता है, आपके वो आवर्स तो पूरे होंगे. बट व्हेन यू कन्वर्ट दिस टू, जब आप इक्विवेलेंसी कराएंगे तो जॉब के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपका कंपटीशन ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको इस बेसिक डिग्री के ऊपर जॉब नहीं मिलती. इन द US यू टू हैव अ डिसेंट जॉब, और यूएस की जॉब्स लॉयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, इमेंसली पेइंग, और मुश्किल लाइफस्टाइल है वहाँ पे भी, लेकिन द टू फील्ड्स दैट पे द मोस्ट इन द यूएस आर आइदर लॉयर्स और डॉक्टर्स. So, and that is true. I've now been there, I've worked there a bit. Foreign entity, I'm currently working for them. वहाँ पे भी आपको डिग्री चाहिए. So, अगर आपको यूएस वाली लाइन लेनी है, so my suggestion will be कि फिर आप यूके की कोई डिग्री ना करें, बिकॉज वो डिग्री अगर आप सोच रहे हैं कि जी हम यूके से मास्टर्स करें और फिर यूएस में अप्लाई करें, तो यू विल बी एट लॉस. आप इन पार नहीं आएंगे उन लोगों के साथ जिनके पास मास्टर्स यूएस का होगा. उसका एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये भी है कि यूएस में द मास्टर्स डिग्री इज फॉर 2 years, इन यूके इट इज फॉर 1 year. तो वो भी आई थिंक वो जो उनका इंटरनल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है उसमें वो उनको प्रेफरेंस दे देता है, एंड वी हम पीछे हो जाते हैं उस पर. और यूएस की मार्केट में कंपटीशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है. तो अगेन टू बी देयर एंड बी सक्सेसफुल इन एनी मैनर, यू नीड टू हैव a degree from anywhere in the US. जी अफशान, and I think तब 3 सवाल highlight होने. Whoever has a question can go first. Fasi and Fayaz. Yes, I think sir. we can take. I had a question. please. Does university ranking matter for pursuing an LLM and working abroad? University ranking, Pakistan की university ranking? No, the ones in abroad. हाँ देखें, अगर आप देखें यूएस में तो बहुत मैटर करती है. यूएस में बहुत मैटर करती है बिकॉज ऑब्वियसली यूएस में देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज. वहाँ की मार्केट का डायनामिक ही ऐसा है कि जी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो दे आर ऑफर्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वहाँ के लॉ स्कूल्स हैं, एनी ऑफ द आईवी लीग स्कूल्स, अगर आप वहाँ से एसोसिएटेड हैं किसी भी तरीके से तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्वालिटी बहुत फर्क हो जाती है. इंग्लैंड में वैसा नहीं है. अगर आप इंग्लैंड से लेट्स से डिग्री करते हैं और आप उसके बाद कहीं भी दुनिया में अप्लाई करते हैं तो से फॉर हैविंग अ डिग्री वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती. इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी मैंने बहुत बड़ी डिग्री यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के सिस्टम से ही एफिलिएटेड है. जैसे इंग्लैंड में देयर इज कैम्ब्रिज, देयर इज ऑक्सफोर्ड, दैट इज ऑल. लंदन में किंग्स है, क्वींस है, दैट्स ऑल. 2-3 ही यूनिवर्सिटीज हैं. सो पूरे इंग्लैंड में 5 यूनिवर्सिटीज
और अमेरिका में तो पहली 15 यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हुए अक्रॉस द स्टेट्स, तो वो वहां से मैटर करेगी, इंग्लैंड वाली यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करेंगी। डू यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम फसी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो मुश्तबा, आई जस्ट पास्ड माय सेकंड ईयर और मैंने अभी 3-4 लाइक इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया है एंड आई रिसीव, मतलब मुझे रिप्लाई नहीं आया किसी भी उससे। इट कुड बी आइदर के मेरी रेज्यूमे पे कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, या आई एम इन आई जस्ट पास माय सेकंड ईयर, बट लाइक एक कुछ 0 पॉइंट तो होना चाहिए लाइक फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट एज अ रिक्रूटर, आई एम अज्यूमिंग, what qualities do you look specifically like to hire the interns वगैरह, या what specific advice do you have for me to like update my resume according to like the standard, or is it necessary like to Okay, for me okay. to get an internship in a second year? अच्छा, मैं आप देखें, आप बड़ा इतना ऑनेस्ट सवाल है कि मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको एक इसका बहुत ऑनेस्ट जवाब दूं। ये मेरी फितरत का हिस्सा है। आई डोंट लाइक शुगर कोटिंग, सो आई विल बी वेरी 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 ब्लंट एंड वेरी ऑनेस्ट इन दिस रिस्पॉन्स। देखें, एज अ रिक्रूटर हमारे पास, मैंने जब समर वेकेशन के लिए आई सॉट सीवीज फॉर इंटर्नशिप, तो मेरे पास अबाउट, I think इस दफ़ा because this was the first time I was associated with LUMS in any manner, तो कुछ 10 से 15 थी जो LUMS से आई, and across Karachi we received a total of about 60 CVs for internships. This is उनका टाइटल था internships। इंटर्नशिप के लिए मुझे पता है कि भाई मुझे उस इंसान से, बॉय और गर्ल, मुझे रेज्यूमे नहीं देखना, बिकॉज इंटर्न को मैंने सिखाना है, इंटर्न ने मुझे कुछ ऑफर नहीं करना। तो बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दैट द मोमेंट वी ओपन इट, each partner, we are 5 partners, each partner on everyday basis got about 10 to 15 requests कि जी आप प्लीज इसको अपॉर्चुनिटी दे दें, आप इसको अपॉर्चुनिटी दे दें, आप इसको अपॉर्चुनिटी दे दें। अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली एंड द रियलिटी इज कि हम इंसान हैं, हम 20 में से 19 लोगों को मना करते हैं। हम सबकी जिंदगियों में वो एक इंसान होता है जिसको हम मना नहीं कर सकते। वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं भी होता, बट मेरे साथ हो जाता है, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों में होता है, या लेट्स से कभी मुझसे कोई रिक्वेस्ट करेगा और मैं नहीं फुलफिल कर सकता, तो मैं रिक्वेस्ट वो आगे ले ओवर कर दूंगा। हम फेयर अपॉर्चुनिटी को डिफीट कर देते हैं, और ये बात सिर्फ इंटर्नशिप तक महदूद नहीं है, यही बात ले ओवर कर जाती है जब हम एसोसिएट्स हायर कर रहे होते हैं। हम एसोसिएट्स के लिए वैकेंसी पोस्ट करते हैं, आज के दिन में 70-80 सीवी आती है। पहले उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको सॉर्ट आउट करना, आइडेंटिफाई करना कि इतने सारों में से कौन ऐसा है जिसको हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करें, फिर वो इंटरव्यूज को इन अ टाइमली मैनर कंडक्ट करना, एक बहुत वो हमारे लिए जिस 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 टाइम टेबल में हम सुबह से लेके 2 बजे तक, मतलब अपना 80% का टाइम हम जाया कर रहे होते हैं कोर्ट में इंतजार करते हुए केस के लिए, और वो केस फिर एडजर्न हो जाता है, तो उस सारे सिनेरियो में हमारे लिए वो पूरा प्रोसेस विद इन 10 डेज 15 डेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। होता क्या है कि उस सारे दौरानिए में अगेन उन 20 में से उस एक इंसान का हमें फोन आ जाता है कि जी आपकी पास पोजीशन है, आप इस बंदे को रखें। तो 70% ऑफ द टाइम और 60% ऑफ द टाइम, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये अक्रॉस द बोर्ड, आप जहां भी कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे, अगर आप उन लोगों से पूछें कि अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके 10 में से कितने लोग एक्चुअली में उस लाइन से आए हैं कि जिसमें किसी को प्रेफरेंस नहीं दी गई, तो वो 1 या 2 लोग होंगे। तो वो जो आप चीज बता रहे हैं, यही जो मैंने शुरू में बोला था कि देयर इज दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज दैट लैक ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इंटर्नशिप, अगेन आपकी बात का मैं जो जवाब दूं कि इंटर्न की डिग्री मुझे उसकी रेज्यूमे नहीं देखना, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिए क्या लिखा होगा, कि आपकी हॉबी क्या है। इफ आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल। आई नो कि आप, आई डोंट
the idea of getting an internship is that आपके पास रेज्यूमे पे डालने के लिए कोई वो हो, क्या कहते हैं, आपके पास कोई चीज हो कि जी यस दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट. बट अगर, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं हम इंटर्न भी वो हायर करेंगे जिसके पास 2 या 3 इंटर्नशिप्स पहले की हों. तो एक चीज उसमें हम भूल जाते हैं कि भाई हम ही इंटर्नशिप्स ऑफर नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे किसी इंटर्न से एक्सपेक्ट करेंगे वो काम करके आया होगा. तो मैं पहले एक जमाने में जब एसोसिएट्स आज से 3 साल पहले जब हायर करता था तो ये देखता था कि हाँ भाई इन्होंने कहीं काम किया हुआ है नहीं किया हुआ XYZ. बट नाउ आई हैव रिमूव्ड दैट रिक्वायरमेंट बिकॉज आई एज ए रिक्रूटर नो के काम है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ से लेके आएगा मेरे लिए एक्सपीरियंस. सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेरी मोस्ट ऑनेस्टली with my experience. हाँ, आपने एक क्लास आखिर में बोला था कि क्या आपके लिए जरूरी है या नहीं है या आपको करनी चाहिए. बिल्कुल आपको करनी चाहिए. देखें, यू हैव टू कीप ट्राइंग. either you should keep sending emails, you can reach out to people directly that you know, because हर कोई उस सिनेरियो को यूज कर रहा होता है. तो जहां पे आपको लगता है कि आपकी इतनी एटलीस्ट रसाई है कि कोई आपकी सीवी देख ले, आई थिंक आपको यूज करनी पड़ेगी. हमारे सिस्टम में रहते हुए मैं आपको बोलूं कि नहीं जी आप बिल्कुल मेरिट का वेट करें और इंतजार करें कि आपको जवाब आएगा. तो मेरे पास आज भी वो ईमेल्स शायद मेरे इनबॉक्स में कहीं सेव्ड होंगी जो मैंने एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट सेंड की थी इस्लामाबाद में 10 फॉर्म्स को और लाहौर में 10 फॉर्म्स को. उनका आज तक कभी जवाब नहीं आया. एंड आई थिंक हर साल स्टूडेंट्स उसी फीलिंग से गुजरते हैं जो मैं गुजरा था अपने पहले साल के समर में, कि मई के एंड में ईमेल की, जून के मिड में ईमेल की, जुलाई में ईमेल की और फिर छुट्टियां खत्म हो गई. सो द सेकेंड टाइम आई डिड दैट आई रियलाइज कि ये ऐसे होना नहीं है. तो फिर मैं जिनसे जितनी मेरी रसाई थी उसमें जिनसे रिक्वेस्ट कर सकता था उनसे रिक्वेस्ट की और मुझे इंटर्नशिप मिल गई. तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कोरिलेट करें जो मैंने आपसे जिक्र किया अभी तक कि व्हेन वी लुक अब्रॉड, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलती है बिकॉज कंपनीज इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, उनके पास एक फिक्स नंबर होता है, आपकी सीवी ऑन टाइम आती है, आपको इंटर्नशिप मिल जाती है. इन एडिशन टू दैट वहाँ पे एक नहीं 100 कंपनीज इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही होती और हर तरह की इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही होती. हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता कि हम वो इंटर्नशिप्स ऑफर कर सकें. इंटरनेशनली बैंकिंग में जो बैंक्स के रिसेप्शन पे लोग बैठते हैं उनके लिए भी इंटर्नशिप्स अलहदा हैं एज कंपेयर टू दोज जिनको बैंक के अंदर काम करने की इंटर्नशिप चाहिए. तो हमारे पास तो ये डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है ना, वो एक्सपोजर ही नहीं है, तो हम कैसे वो चीज़ ऑफर करेंगे. मेरी बातों से बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम एक दफा लगा देते हैं ताकि अपने अंदर का पेट्रियट जो है वो उसको हम रिमाइंड करते रहेंगे ये मुल्क बहुत अच्छा है. ओके, फसी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन या आपके पास कुछ फॉलो अप है? Yes, it does answer my question. Thank तो you. आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह देयर विल बी दैट वन पर्सन who will offer you the internship which will then lead into a job. ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन था अफरा का कि जी व्हाट इज द स्कोप ऑफ लीगल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान. लीगल कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी in the international market is something which is differentiated and identified separately from the pure legal field. If I have to give you my apologies, if I have to give you the example of Dubai or UAE, जहाँ का मुझे experience है तो I can say for it, वहाँ पे business advisory, business consultancy और consultancy का जो एक umbrella का license है वो बहुत different है as compared to the acquiring the license of a lawyer. तो आपने अगर किसी को वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है तो आप वहां पे वो कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, एंड आई कीप यूजिंग द वर्ड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इट इज सो अनफॉर्चुनेट, कि हमारे पास
कंसल्टेंसी की मार्केट is either ruled by litigation lawyers or by the corporate firms. आपकी कोई भी एंटिटी पाकिस्तान में काम करते हुए ओपिनियन सीख करने के लिए लीगल कंसल्टेंट के पास नहीं जाती। उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि जी वो अपने इन हाउस को बोलते हैं कि जी हमें इस पे ओपिनियन चाहिए, कि जी ये नया टैक्स रिजीम आया, इस पे बताएं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब जो इन हाउस काउंसिल होता है पाकिस्तान में, वो टैक्स का स्पेशलिस्ट लॉयर नहीं होता। उस कंपनी के पैनल के ऊपर 5 टैक्स लॉयर होते हैं, 5 सिविल लॉयर्स होते हैं और 1 या 2 कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। तो उनमें से उन इन हाउस लॉयर का जो दोस्त होगा, जो या कॉर्पोरेट लॉ फर्म में होगा, या वो सिविल लॉ फर्म में होगा, या वो टैक्स लॉ फर्म में होगा, वो उसको वो क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके ऊपर से वो ओपिनियन लेंगे और उसके साथ उस कॉर्पोरेट लॉ फर्म की जो है वो एक हेफ्टी इनवॉइस आएगी और वो क्वेरी वहां पे क्लोज हो जाएगी। उसके ऊपर वो एंटिटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करके फैसला कर लेंगे कि हाँ जी हमें इस टैक्स रिजीम के ऊपर ये लेना है, अगर इसको चैलेंज करना है तो आप अब हमारे पैनल में से एक्स बंदे को अपॉइंट कर दें, वो जाके चैनल कर देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिपेंडेंट ऑफ लॉयर्स। मेरे पास या किसी वकील के पास कोई क्लाइंट सिर्फ मशवरे के लिए नहीं जाता, वो हमेशा मशवरा और केस करवाने के लिए जाता है कि जी आप हमें मशवरा भी दें और साथ केस भी कर, मतलब देयर इज वो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करती कि लेट्स से मैं कहूँ कि आज मैं अगर अपना स्ट्रक्चर चेंज करके कहूँ कि जी आई प्रोवाइड लीगल कंसल्टेंसी, तो मेरी क्लाइंटेल 100 से 5 भी नहीं रहेगी। वो सब उसके बाद जाएंगे जो एक होलसम पैकेज लॉयर होगा जो उनको कोर्ट ले जा सकता होगा। तो अगेन ये आइडिया पूरी दुनिया में चलता है, दिस वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कंसल्टेंट का काम कंसल्टेंसी देना है, उसका काम ओपिनियन देना है। यू टेक दैट ओपिनियन, यू कंपेयर दैट ओपिनियन विद अनदर ओपिनियन, और यू टेक दैट ओपिनियन टू अ डिफरेंट लॉयर एंड यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सो अफशान, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था और आपके जो पहले 2 क्वेश्चन थे यूके और यूएस वाले, in my mind I have answered those. If you have any follow-up question, please पूछें, because अब इसके बाद मेरे पास एक आधी पॉइंट रह गया है from my notes which I have to cover. Anybody else, किसी का कोई क्वेश्चन हो? आप मेरे से about my experience as a litigator कोई सवाल पूछना चाहते हैं? Any question that you want to ask, जो आपको किसी तरीके से मदद कर सके, प्लीज यू आर वेलकम टू। जी फसी। Mustafa, very good insights. Like, it's really inspiring. But can you please highlight the point कि आपकी financial standing by the like 5 years कहाँ होती है, and which field is like mostly like जो मतलब आपकी financial standing being from like let's say underprivileged areas, या you are not privileged, you don't have that background, that legal background, या आपको DHA के बच्चे नहीं हैं, तो आपको एक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत होती है टू लाइक रन योर फैमिली। तो आप being a litigator या being a lawyer, which field do you think is like most financially beneficial? अच्छा बॉस, इसमें मेरा ज़ाती राय तो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ी सी डिवॉल्व कर जाती है इनटू रिलीजन। एज अ ह्यूमन आई बिलीव कि जो इररिस्पेक्टिव, मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ स्टेटमेंट को, कि जी इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद, मेरी ज़ात का ये बिलीफ है कि जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो मुझे मिलना ही मिलना है। उसका वक्त मुकर्रर है, उसका टाइम मुकर्रर है, उसके लिए मुझे सिर्फ जो चीज़ करनी है वो है कि मैं उसके लिए अपनी ज़ात से जितनी मेहनत कर सकूँ। ये सवाल मेरे लिए उस दिन भी बड़ा रेलेवेंट था जिस दिन मैं, एंड आई हैव नो शेम इन शेयरिंग दिस, my parents had one asset which they sold to pay for my bar at law degree. When that asset was sold, I had a very I see, मैं आपसे वो बड़ी रियल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। आपका सवाल ऐसा है कि इस पे मैं कुछ शुगर कोट करके जवाब दूं तो शायद इट विल नॉट डू जस्टिस। मेरी अपने वालिद साहब के साथ कॉन्वर्सेशन हुई कि बेटा मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने बेच दी।
या तो इसको बेच के मैं आपको कोई छोटा मोटी प्रैक्टिस सेटअप कर देता, या हम आपकी बार की फीस दे देते। अगर आप बार नहीं कर सके तो इसके बाद तो बेटा फिर आप कोई और मजदूरी कर लेना, हम तो पैसे नहीं दे सके। तो ये एक बड़ा रेलेवेंट और एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो कि अगेन इस सारी चीजों में वो बीच में रह जाती है। आप बहुत सारे लोग लिटिगेशन में इसलिए सरवाइव नहीं कर पाते बिकॉज स्टार्टिंग में लिटिगेशन की वो तनख्वाह तो नहीं कहलाएगी, बट जो स्टाइपेंड वो देते हैं वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये होता है। अब हमारी मार्केट में अगर 100 लॉयर्स हैं तो आप प्लीज इस चीज को बिलीव करें कि मेरे इर्द गिर्द के लोग 100 में से 85 लोग पैसे देने में बिलीव ही नहीं करते। ये एक मसला है, ये हमारी ग्रूमिंग के, हमारे दिमाग कौम के साथ मसला है कि भाई हम शायद अपनी पैसे देंगे तो कहीं चले जाएंगे। जिस मॉडल पे ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये क्रेडिट इवेंचुअली मेरे उस्ताद को जाता है कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया, उन्होंने मेरे साथ अपनी प्लेट शेयर की तो मैं कुछ अपने पाँव पे खड़ा हो सका। वो ना करते तो मैं ना कभी सीखता कि प्लेट शेयर कैसे करनी है, ना मेरे अंदर ये ख्याल आता। मेरे पास भी जब 4 पैसे आते तो मैं कहता हाँ भाई ये पैसे मेरे ही हैं, मैं किसी से शेयर नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो रहा है, बट वो इतना बेहतर नहीं हुआ कि वो इन्फ्लेशन को मैच कर सके। तो इंटर्न को अगर मैं लेट्स से स्टाइपेंड दे रहा हूँ 20,000 रुपये 25,000 रुपये, तो चलें समझ में आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इंटर्न इज नॉट एडिंग समथिंग टू, वो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा, वो मेरे से ही सीख रहा है, मेरा रिसोर्स यूज कर रहा है। बट अगेन इसके पीछे एक बड़ा, सो आप लोग ये सारी थॉट को यहाँ पे पोज करें, मैं आपको एक अब इंसाइट देता हूँ कि हाउ हाउ वी शुड थिंक एंड व्हाट वी डोंट थिंक। मैं अपनी जात का इनपुट रिसोर्स एक एसोसिएट के ऊपर लगाता हूँ। व्हाट एम्प्लॉयज डोंट रियलाइज इज कि यार वो रिसोर्स आपको इन द लॉन्गर रन कितना फायदा देगा, कि अगर मैं आज 25 की जगह 50,000 दे के या 75,000 दे के एक एसोसिएट रिटेन करता हूँ, तो 3 years लेटर दैट एसोसिएट वन विल रिमेन विद मी। वो उसको कभी वो कंसर्न नहीं होगा कि मैं पैसों की वजह से नौकरी छोड़ दूं। नंबर 2, एट द एंड ऑफ द डे दैट एसोसिएट इज मेकिंग माई लाइफ ईजी। Because of that associate, I can take off on a Friday. Because of that associate, I can play golf on Saturday. Because of that associate, I can do a dinner or lunch with my family. तो हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि भाई जो आप अपना रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं अपने साथी के साथ, जो बंदा आपका कॉलीग है, वो आप ही की जात को बेनिफिट कर रहा है। हम लोग इसको इस जाविये से नहीं देखते कि भाई अगर मैं किसी के साथ अपना रेवेन्यू या मैं अपना केस किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ, तो यार वो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जात को आसानी दे रहा है। वो क्लाइंट मेरे ऑफिस में रह रहा है, वो क्लाइंट को सुपरवाइज मैं कर रहा हूँ, फीस बेशक मेरा साथी ले ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वैल्यू मेरी जात में ऐड हो रही है, मेरी फर्म में ऐड हो रही है। हम कहते हैं नहीं, चाहे वो 50,000 रुपए का केस है, चाहे वो लाख रुपए का केस है, वो भी मेरी जेब में आए और मैं उसको उसमें से 10,000 रुपए दूं। ये एक बड़ा फंडामेंटल इशू है। लाहौर में बहुत ज्यादा है, मैं लाहौर में और इस्लामाबाद में तो खैर उससे भी कहीं ज्यादा है, बिकॉज पैसे देने वाली क्लाइंटल ही नहीं है। कराची में बिकॉज क्लाइंट पेइंग पावर है, पेइंग कैपेसिटी है, तो क्लाइंट्स का माइंडसेट डिफरेंट है। द क्लाइंट विल वॉक इनटू माय ऑफिस इन कराची and be mentally prepared to, let's say, pay an X amount, but that same client when walking into a lawyer's office in Islamabad will be mentally ready कि मुझे X minus 50 जो है वो अपनी जेन में तय कर दिया। So this is where we stand as of today in this system. हम जो है sorry guys, just give me one moment. So sorry. So जो आपका अगेन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, क्या चीज पे ऑफ करेगी? देखें, खुशकिस्मती हो तो लिटिगेशन भी बहुत जल्दी, अगर आप ऐसे हैं कि जिनके पास कनेक्शंस की वजह से क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो आपको तो डे 1 लिटिगेशन बहुत बेनिफिट करेगा, बिकॉज केसेस फाइल करने शुरू करें और चांदी है नाम बनेगा, हो जाएगा। कॉर्पोरेट और इन हाउस में एक चीज बड़ी जो है कि वो आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं टू द सैलरी दैट इज कमिंग इन। लिटिगेशन में ना मिनिमम कैप है और ना ही हायर कैप है,
आप कमाने को 100 रुपया भी कमा सकते हैं, और अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो 10 रुपये भी नहीं आएंगे। तो जो वो लफ्ज एक हवाई रोजी यूज होता है उर्दू जबान में, ये थोड़ी सी उस तरीके की है, बिकॉज मैं अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, मैं कोई अपने आप को, और देयर इज नो वे ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड कि हाँ जी ये मैं कर रहा हूँ, और मेरी फी डिटर्मिन करने का कोई सेट क्राइटेरिया या पैरामीटर्स नहीं है। इट इज ओनली दैट बेसिक क्या कहते हैं, वट एवर आई डिटर्मिन। मैं अगर डिटर्मिन करता हूँ कि जी मेरी फी होनी चाहिए 1000 रुपया, तो वो 1000 रुपया होगी। मैं डिटर्मिन करता हूँ कि मेरी फी करोड़ होनी चाहिए, तो करोड़ होगी। तो इसका कोई सेट जवाब उस तरीके से नहीं है। वो यही है कि आपको लगता है कि आपके पास इतनी पीछे सस्टेन करने की कैपेसिटी है कि आप लिटिगेशन के पहले कुछ साल सस्टेन कर जाएं, तो बहुत सारी मेहनत के साथ और बहुत सारी खुशकिस्मती के साथ आप लिटिगेशन में उस जगह पहुंच सकते हैं कि जहां पे आपको फिर देन देयर इज नो एंड टू द मनी, बिकॉज फी अगेन आपने डिटर्मिन करनी है। वो एक केस में आप 50 लाख कर लें या 10 केसेस में 5-5 लाख करके कर लें, वो आपके ऊपर, वो उसके ऊपर है कि आप व्हाट यू आर सेलिंग एट द एंड ऑफ द डे। कॉर्पोरेट में इन हाउस में एक बड़ा सेट स्ट्रक्चर है, आप एक सैलरी की लाइन में लग जाते हैं, एंड देन ऑब्वियसली विद विद प्रोग्रेस आपकी वो सैलरी बढ़ती रहती है। सो लिटिगेशन में सरवाइव करने के लिए थोड़ी सी कमर कसनी भी पड़ती है, और कुछ अगर सपोर्ट हो तो मेंटली बहुत आसानी हो जाती है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। परफेक्ट। आप में से इसके अलावा किसी में से कोई सवाल? हसीब, आपने बताया था आपके वालिद साहब ये इज इन प्रैक्टिस। ये जो सारी बातें मैंने की हैं, इसमें आप कोई खुद से, बिकॉज ऑब्वियसली आपके घर में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पास ये एक्सपोजर है ग्रोइंग अप, आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, परहैप्स कुछ जगहों पे आपने यू मस्ट हैव सीन डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट आई हैव सेड। तो इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, और वुड यू लाइक टू से समथिंग? चैट में देख नहीं रहा हूँ सो। Yes, Mustafa, I agree to all the things that you have said. And plus, I have a question for you. जी जी। LLM को तो आपने बताया कि specialized LLM is beneficial than generalized LLM. So, what about bar at law? Does it helps? यार अच्छा, अब ये अगेन जैसे भारत लॉ है ना, हमारे पास क्लाइंट आके सवाल पूछता है, आपको लिंकन इन में दाखला मिला था? लिंकन इन, ये दिस इज ये क्वेश्चन पाकिस्तान में भारत लॉ को और बैरिस्टर्स को डिफाइन करता है। भारत लॉ का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि व्हाट वाज भारत लॉ, द भारत लॉ डिग्री यूज्ड टू बी अ वोकेशनल कोर्स फॉर द हाई सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, जिसमें आप की स्केड्यूल में अगर 10 दिन, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 महीने का कोर्स है, तो हर महीने 4 डांस क्लासेस होती थी, 4 जो है वो डिनर्स होते थे, 4 क्लब आउटिंग्स होती थी, जिसका बेसिक आइडिया होता था कि आपको फ्रेटर्निटी को और बेंचर्स को, जो वहाँ के जजेस हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करना है। विद कायदे आजम गोइंग फॉर द बार, हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जी अगर आपके पास बैरिस्टर का टाइटल है, तो शायद ऑटोमेटिकली आपने कोई ऐसी चीज अचीव कर ली है विच विल गिव यू एट पार, which will perhaps raise you become different than the others, the simple advocates. भारत लॉ बड़ी एक्सपेंसिव डिग्री है आज के दिन में, इंग्लैंड जाके करना बहुत महंगा है, बट थैंकफुली टू आर पाकिस्तानी माइंडसेट, जिनको लगता है कि बैरिस्ट्री की वजह से मैं कुछ डिफरेंट हो गया हूँ, a client will always subconsciously be willing to pay a higher fee to a barrister as compared to an advocate. That is all. अगर आप इसको सम अप कर दें, हाँ आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, आप सीखेंगे बहुत, उस जैसी तो मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ एडवोकेसी के लिए, आपकी ग्रूमिंग के लिए भारत लॉ जैसी डिग्री ही नहीं है। मैं सबको मशवरा देता हूँ कि लिंकन से ना जाएं,
हर कोई कहता है लिंकन इन ना जाएं। लिंकन इन में भी जाके आप उन्हीं दो लोगों के साथ रोज बैठेंगे जिनके साथ आप लाहौर में या जिनके साथ आप पढ़ाई के दौरान रोज बैठते हैं। आप किसी और ग्रेज इन में जाएं, मिडिल टेम्पल में जाएं, इनर टेम्पल में जाएं और बार एट लॉ के कॉन्सेप्ट को समझें कि है क्या, कि आपको वहां पे बैठ के जब डिनर होगा मिडिल टेम्पल का या इनर टेम्पल का, तो आपके टेबल पे 4 बेंचेस, क्वींस काउंसिल 2 जो उनपे वकला को, जैसे हमारे पास सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पे क्वींस काउंसिल और अब विद द किंग इट विल बी किंग्स काउंसिल का टाइटल मिलता है, वो लोग बैठे होंगे और जजेस बैठे होंगे और आपके पास वो 2 घंटे वो मौका होता है उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का। और ऑब्वियसली जो इनसाइट उनके पास है ऑफर करने के लिए, हम ना वो कभी सोच सकते हैं ना वो हम कभी वैसे गेन कर सकते हैं। आई हैव डन मार्शलिंग। मार्शलिंग इज बेसिकली एन इंटर्नशिप विद अ जज फॉर वन ट्रायल इन इंग्लैंड। मेरी प्रैक्टिस के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट तरीन केसेस भी अगर आप मिला लें, तो जो एक्सपीरियंस मुझे वहां बैठ के मिला था वो अनमैच्ड है। बिकॉज ऑब्वियसली उस काम का तरीकेकार फर्क है। एक बड़े और सुकून माहौल में कानून की बात की जा रही हो, एक बंदा दलाइल दे रहा हो, उसका जवाब दिया जा रहा हो, कोई हमारे अनफॉर्चुनेटली अदालतों की तरह गालियां लड़ाइयाँ वो ना हो, तो आप मेंटली किसी और जोन में होते। तो इन चीज़ों का कंपैरिजन ही नहीं हम अपने साथ कर सकते। हम बिल्कुल ही एक और लाइन पे चल रहे हैं। बाकी एज एज आप इंडिया से अगर मुकाबला करें, आप इंडिया की जजमेंट्स पढ़ें, इंडियन जुडिशरी is at least 100 years ahead of us in legal development. हमारे पास 1908 के सिविल प्रोसीजर की अमेंडमेंट कोई नहीं आई आज तक। उनके पास अमेंडमेंट्स हर साल आ जाती है इंग्लैंड की तरह अब तो, और वो अपना प्रोसेस कहाँ से कहाँ ले गए। अगेन वो डेवलप कर रहे हैं, उनकी उनकी चीज़ों को फायदा हो रहा है। हमारे पास सवाए अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज होने के, अब तो यूट्यूब पे आता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो सिंस द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन ऑनलाइन, तो आपकी जो रियलिटीज हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। बार एट लॉ करें, बैरिस्टर का टाइटल लें। इंग्लैंड में तो लिमिटेशन ये है कि बगैर प्यूपलेज के आप किसी भी आप ना अपने कार्ड पे बैरिस्टर इन लॉ लिख सकते हैं। मैं बड़ा केयरफुल होता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड में कभी हूँ तो मैं किसी भी जगह पे अपना वो वाला विजिटिंग कार्ड ना दूं पाकिस्तान का जिसपे बार एट लॉ लिखा हुआ है। बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द एथिक कोड और जो रूल्स हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करना एज अ बैरिस्टर विदाउट प्यूपलेज इज अ क्राइम। पाकिस्तान में आप वो टाइटल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम बैरिस्टर लाइफ टाइम रहेंगे। वो जो सारी इस चीज के बारे में होती है कि नहीं जी 5 साल की एक्सपायरी है, प्यूपलेज नहीं किया, या 10 साल की एक्सपायरी है, दैट इज नॉट रेलिवेंट। वो देयर इज नो रियलिटी बिहाइंड इट। आपने बार लॉ डिग्री कर ली, इट्स लाइफ टाइम डिग्री। हाँ, प्यूपलेज आपने नहीं की तो आपको कभी इंग्लैंड में प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान आके उस डिग्री पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 50 की जगह 500 रुपये किसी जगह पे ऑफर हो जाएंगे। दैट इज what the reality of degree is. Yes, and other than that, कुछ जजेस को पाकिस्तान में भी आई गेस इस पे जरा मसला होता है बैरिस्टर यूज करने पे। रिसेंटली आई वाज सीइंग जस्टिस काजी फैज ईसा के वो जरा गुस्से हो रहे थे कि ये इलीगल है, आप कैसे बैरिस्टर यूज कर सकते हैं। ये बस यही चीज है कि वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के अंदर वो कुछ जगहों कुछ जो नहीं है। आप जब इस प्रोफेशन में आएंगे तो आप देखेंगे तो ये वाली एनिमोसिटी आपके साथियों में भी होगी कि जब कोई चीज जगह पे बहुत सारे कराची में वकला द टाइटल बैरिस्टर एज अ तंज यूज करते हैं कि जी बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं, शायद इन्होंने पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा। ये जुमला मैं भी किसी दफा यूज कर चुका हूँ बैरिस्टर होते हुए विद अ फेलो ओपोनेंट ऑफ माइन। तो ये सारी चीजें तो दे आर पार्ट एंड पार्सल। सो आई आई होप कि मैंने जो आपसे अपने ख्यालात शेयर किए और more like a venting session on my part, but I hope this will aid you and help you, and you can lay over this information to your friends. आप लोगों के पास सवाल हो, कोई ऐसे जो आप इंडिविजुअली रीच आउट करना चाहें, I think my profile is available, the LinkedIn profile is available, you can reach out there. आप में से कोई कराची में at any point in time, जब आप कराची में अवेलेबल हुए इन अगस्त, आई हैड स्पोकन टू आयशा कि हम एक
इन पर्सन सेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जो इंटरेस्टेड हो उसके लिए यू गाइस आर मोर देन वेलकम, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू in making those decisions जिन decisions को लेते हुए मुझे मुश्किल हुई थी। I hope this will aid you in doing that. बाकी कानून सीखना, वकालत सीखना, उसके लिए बहुत जिंदगी पड़ी है। विद टाइम आप लोग वो सब सीख भी जाएंगे और इंशाल्लाह जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर भी लेंगे। Any last questions? Anything else, Aisha? If there's anything you want to add, or I think you have almost covered everything. There's only one thing I would want to clarify on behalf of students is many students come to us asking what skills we should be working on and how we can like search for jobs or apprenticeships in the legal field. So if you could shed some light on that as well. देखें स्किल एक दो चीजें हैं जो बड़ी बेसिक्स हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम जब कोई भी जॉब के लिए if we post it on Facebook or a group or somewhere, हमारे पास 100 में से 30 सीवीज ऐसी आती हैं जिन पे टाइटल नहीं होता, जिन पे रेज्यूमे के स्पेलिंग गलत होते हैं, और मतलब मुश्तबा राजा CV 1, मुश्तबा राजा CV 5, मुश्तबा राजा CV 11, ग्रैंड फिनाले CV। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपका रिक्रूटर के साथ इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको वो एक रियलिटी में 5 सेकंड है या 7 सेकंड है जिसमें आई विल स्किम थ्रू दैट। और जिन जगहों पे तो HR है वहां पे तो चले बेहतर होती है टाइम, बट अगर आप इंडिविजुअल ओरिएंटेड, अगेन जो मैंने बात की थी, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस को रीच आउट कर रहे हैं तो वो तो 5 सेकंड 10 सेकंड में देखेगा आपकी CV ऐसी है या नहीं है। योर CV शुड हैव दैट वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट। 4 पेज की CV कोई नहीं देखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक वाली CV कोई नहीं देखेगा। अगर आपने कवर लेटर और अपनी CV कॉपी की हुई है, या वो जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है दैट बहुत अच्छे हैं आप और बहुत बहुत दुनिया में सबसे अच्छे आप हैं, वैसी कोई चीज लिखी हुई है वो कोई नहीं पढ़ेगा। बी वेरी रियल, टू द पॉइंट। CVs इंटरनेशनली वन पेज CVs होती हैं, चाहे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे वो स्टार्टिंग आउट कोई बंदा हो। स्कूल्स की एजुकेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल मैटर नहीं करती, ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए मैटर करती है बिकॉज आप लोग अभी सारे उस पे हैं, बट वंस यू गेट इनटू द लीगल फील्ड तो वो नहीं, वो फिर इररेलेवेंट, फिर आपका एक्सपीरियंस ही इज व्हाट डिफाइंस यू एंड टेक्स यू एनीवेयर। इंटरनेशनली भी अप्लाई करते हुए आई थिंक हम लोग, क्योंकि सीवीज रिजेक्ट ही शायद इसलिए होती हैं कि हम जो है वो अगर इंटर्नी लिख दें तो इंटर्नी का इंग्लिश में मतलब तो वो कैदी भी होता है, तो वो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं कि यार इनको तो बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं पता कि ये अप्लाई किस लिए कर। तो आई वुड से कि जस्ट स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कि जब भी आप अपनी CV सेंड आउट करें और आप रीच आउट करें किसी को, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, out of the 10 jobs that I have given in the past 3 years, 3 were because the people followed up. It is extremely necessary. It is extremely necessary to follow up. Follow up can make that difference. Follow up is that one thing that will differentiate you from someone who doesn't care to follow. तो बहुत दफा अगर आपकी CV ऐसी है कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, but follow up can also be a very very helpful and aiding factor in this life. Okay, thank you. Mustafa, and is anything else that you would want after, like student body? You just told us that you have been connecting with the student body and had a chance connecting with them over this mentorship session as well. One thing you'd like them to say that this is one particular thing they should focus on as LUMS students or as law students currently? देखें, एज लम स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि फोकस, आप लोगों के पास बेनिफिट ये है कि एज रिक्रूटर्स हम जब हायर कर रहे होते हैं तो हम जिन इंस्टीट्यूट्स के पास BA LLB वाली डिग्री है, जिन स्टूडेंट्स के पास, उनको हम वैसे ही अब प्रेफरेंस देते हैं। बिकॉज हमारे लिए जो आदमी CPC पढ़ के आया हुआ है और कानून शहादत से वाकिफ है, वो वैसे ही थोड़ा सा
हम वी आर एट ईज के अच्छा इसको पता है। तो आई थिंक कि ड्यूरिंग योर जो स्टूडेंट बॉडी की जो पढ़ाई वाला टाइम है उसमें अगर जो बेसिक 5 किताबें हैं, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून शहादत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर इन 4 पे कुछ ज्यादा फोकस कर लिया जाए तो इंटरव्यू के दौरान आई थिंक अ स्टूडेंट हु हैज रेड द CPC और हु हैज रेड द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं आपको ये आई गिव दिस क्रेडिट टू लम्स स्टूडेंट्स, आप लोगों की जब भी CVs आती हैं, जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, लम्स के स्टूडेंट का नॉलेज हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले से पाकिस्तानी लॉ पे तो बहुत ज्यादा होता है। उनको जजमेंट्स भी पढ़ी होती हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट, और आप लोगों की फैकल्टी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस, वो लोग जो कि कोई जूरिस्ट, जिनको हम जूरिस्ट समझते हैं, वो वहाँ जाके पढ़ाते हैं। तो जस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट नॉलेज दैट इज बीइंग इम्पार्टेड। इन 4 चीज़ों पे बस फोकस कर लें किताबों पे, तो प्रैक्टिस के लिए तो इस जैसी ये दिस इज व्हाट विल एड यू द बेस्ट। Thank you. Thank you so much, Mustafa, for the insight and handling the queries so well. It was a lovely session, and I'm sure the students would have enjoyed the session as well. It was a pleasure. It was a pleasure, and please आप लोग अपने साथियों से ही शेयर करें information, and inshallah I will hope to reconnect with all of you in the future as well. Inshallah, soon. Thank you once again. Thank you very much.